Hello, students. Hope so. All of you are fit and fine. And this is your CCS class. And we are starting our class with Unit 1. And all of you must be familiar with mobile apps. And you know very well it that you use several apps in daily routine in your life. So I'm just playing a video to show some examples of apps. So let's see it. So students, in this video we have recollect the component and functions of the some sample apps. So students, this is your task. As you are seeing that you have to write down your observation from the app, and what will you observe, what you have observed, and write in this components, sound, and its functions. So this is your task, and complete it and send it to me. So our next topic is building Android apps using App Inventor. जो हमने अभी apps मैंने आपको दिखाई हैं, how to build we Android apps using App Inventor. जो हम apps create करते हैं वो हम App Inventor में करते हैं. You must have played several games on mobile phones. Do you know what exactly are these? Well, these are called apps. So when you play a game on a mobile phone, you use a game app. The word app stands for application. There can be different types of apps. Let us have a look over some of them. This is App Inventor. And what is App Inventor? App Inventor is a blog-based programming platform where we can create interesting apps for mobile phones and tabs. अब ये इसका डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है. इट कंसिस्ट ऑफ टू विंडोज एंड द फर्स्ट वन इज डिज़ाइनर विंडो. So in designer window, here right side is designer button. Click from any tab to go to the designer tab. एंड राइट साइड में देख रहे हैं प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं. सिलेक्ट ए कंपोनेंट इन द कंपोनेंट्स लिस्ट टू चेंज इट्स प्रॉपर्टीज लाइक कलर, साइज, बिहेवियर. And in the left side here is palette. Find your components and drag them to the viewer to add them to your app. And second window is blocks editor. And right side अप में टॉप में जो आप देख रहे हो ब्लॉक्स बटन. क्लिक फ्रॉम एनी टैब टू गो टू द ब्लॉक टैब. एंड इन लेफ्ट साइड built in drawers. Find blocks for general behaviors you may want to add to your app and drag them to the blocks here. यहाँ पे क्या होगा, आपके ब्लॉक्स होंगे जो आप उनके बिहेवियर के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं. एंड लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ कंपोनेंट स्पेसिफिक ड्रॉर्स. फाइंड ब्लॉक्स फॉर बिहेवियर्स फॉर स्पेसिफिक कंपोनेंट्स एंड ड्रैग देम टू द ब्लॉक्स वियर.
ठीक है, एक स्पेसिफिक कंपोनेंट्स जो स्पेसिफिक जिससे टास्क परफॉर्म किए जाते हैं. Now the first one is designer editor. Clicking on the designer button on the top right of the screens opens it up. Let us have a look at it and understand the purpose of various components available in the designer window. अब डिज़ाइनर एडिटर में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं. फर्स्ट है आपका पैलेट. इट इज़ लोकेटेड एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन. इट शोज ऑल द कंपोनेंट्स दैट वी कैन यूज इन आवर प्रोजेक्ट एंड आर डिवाइडेड इन सेक्शंस एज शोन बिलो. इसके पास सभी वो कंपोनेंट्स होंगे जो हम अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं और ये इस तरह से डिवाइडेड किए गए हैं. फर्स्ट है आपका यूज़र इंटरफेस, सेकंड आपका लेआउट, थर्ड आपका मीडिया और फोर्थ आपका सेंसर्स. व्यूअर. It shows the actual representation of our app. We drag the component from the palette to the viewer. जो हमारे पास पैलेट सेक्शन था, जो हमारा लेफ्ट में था टॉप में, जो हमारे सभी कंपोनेंट्स को शो करता है, तो उसमें हम क्या करेंगे, जो पैलेट से जो भी हम कंपोनेंट सेलेक्ट करेंगे और वो हम कहाँ प्लेस करेंगे, व्यूअर में. और व्यूअर क्या है, ये हमारी एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर ऐप. नेक्स्ट है आपका कंपोनेंट्स. दे अपीयर ऑन द व्यूअर स्क्रीन एंड आर यूज टू बिल्डिंग एन ऐप. जो व्यूअर स्क्रीन पर शो होते हैं और ऐप को बिल्ड करने में हेल्प किए जाते हैं. द फॉलोइंग्स आर द टू मेन टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स इन ऐप. विजिबल कंपोनेंट्स एंड नॉन विजिबल कंपोनेंट्स. इनके नेम से ही श्योर है. विजिबल मीन्स जो हमें विजिबल होंगे, जो हमें दिखाई देंगे. नॉन विजिबल जो हमें दिखाई नहीं देंगे. Visible components. The components that you can see when the app is launched are called visible components, and these components from the app's user interface. Examples दिए गए हैं: button, text box, label and image sprite. Buttons जिनके ऊपर हम क्लिक कर सकते हैं. टेक्स्ट बुक्स लाइक जब हम टेक्स्ट कुछ राइट करते हैं टेक्स्ट बॉक्स में. लेबल्स मीन्स जो नेम दिया जाता है, जैसे लाइक टेक्स्ट बॉक्स के आगे जो लेबल लगा होगा. एंड इमेज स्प्राइट जो इमेज होगी. नॉन विजिबल द कंपोनेंट्स दैट यू कैन नॉट सी एंड आर नॉट अ पार्ट ऑफ द यूजर इंटरफेस एंड आर कॉल्ड नॉन विजिबल कंपोनेंट्स. दीज आर द टेक्नोलॉजी विद इन द डिवाइस. एग्जाम्पल्स है टेक्सटिंग, लोकेशन सेंसर, टेक्स्ट टू स्पीच एंड एक्सीलरोमीटर. प्रॉपर्टीज. इट अलाउज अस टू चेंज द प्रॉपर्टीज ऑफ द एडेड कंपोनेंट्स. जो हमारे कंपोनेंट ऐड हो चुके हैं हम उनमें चेंजेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज ऑप्शन. इसके अंदर आप देख भी रहे हो, बैकग्राउंड कलर सेट कर सकते हैं, एनेबल कर सकते हैं मुझे. फॉन्ट हमारा कैसा होगा, बोल्ड होगा या बोल्ड नहीं होगा, फॉन्ट होगा, फॉन्ट साइज हो गया आपका. Properties of visible components. Components such as buttons and labels have properties such as width, height and alignment. Width से आप समझ गए, height से भी समझ गए. Alignment क्या होता है, like उसको लेफ्ट में सेट करना, राइट में या सेंटर में, या उसका जस्टिफाई करना. which together define how the component looks and can be changed according to our needs. अब देखिए, अब बटन वन का हमारा ओल्ड नेम हमारा बटन वन है, हमने न्यू नेम दे दिया उसे, हम उसे न्यू नेम दे सकते हैं. Properties of non-visible component. Once a component has been dragged to the center viewer screen and is selected, the right column will display the component's full list of properties. The user can even change the names of the visible components as per their needs. जैसे ही हम उसको ड्रॉप कर देंगे व्यूअर स्क्रीन पर, तो हमारे सामने एक कंपोनेंट्स की फुल लिस्ट आ जाएगी विद प्रॉपर्टीज़ के साथ, जिसमें हम उन्हें चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड. ब्लॉक्स एडिटर. अभी तक हमने डिज़ाइनर एडिटर के बारे में पढ़ा था. अब है हमारा नेक्स्ट विंडो ब्लॉक्स एडिटर. द ब्लॉक्स एडिटर इज यूज टू ऐड बिहेवियर ऑफ द कंपोनेंट्स. जो कंपोनेंट्स का बिहेवियर ऐड करता है, मतलब वो कैसे टास्क परफॉर्म करेगा, कैसे एक्शन परफॉर्म करेगा. क्लिकिंग ऑन द ब्लॉक्स बटन ऑन द टॉप राइट ऑफ द स्क्रीन विल टेक अस टू द ब्लॉक्स एडिटर. हम क्या करेंगे, टॉप राइट में होगा और जो हमें ब्लॉक्स एडिटर के अंदर ले जाएगा. लेट अस नाउ गेट एन आइडिया about the components available in the block editor. The block editor consists of two blocks होते हैं. built-in drawers. These blocks are already built in the app inventor. built-in drawers क्या होते हैं, जो ऑलरेडी उस ऐप इन्वेंटर के अंदर होते हैं, बिल्ट किए होते हैं. और कंपोनेंट स्पेसिफिक ड्रॉर्स,
These blocks are added to the viewer screen as per the requirement of the application. जो apps की requirement के according viewer screen में add किए जाते हैं. Built-in drawers, these are used to add blocks for the general behavior required for our app. It is basically consists of built-in blocks which decides the behavior of the components. अब यहाँ पर आपको a list of the all built-in blocks available in the blocks editor is given as follows. जो हमारे built-in blocks होते हैं जो हमारे पास ऑलरेडी होते हैं वो दिए गए हैं. लिस्ट ब्लॉक्स, डिक्शनरी ब्लॉक्स, कंट्रोल ब्लॉक्स, लॉजिक ब्लॉक्स, मैथ्स ब्लॉक्स, टेक्स्ट ब्लॉक्स, कलर्स ब्लॉक, वेरिएबल ब्लॉक्स, प्रोसीजर ब्लॉक्स. Again, blocks editor, component specific drawers. These are used to find blocks in order to show the behavior of the specific components being used in our apps. हमारी apps की requirement के according जो है वो ये add किए जाते हैं viewer screen पर. The component specific blocks that we use according to the requirements of our application could contain the following. जो कुछ इस तरह से हो सकते हैं: बटन 1, टेक्स्ट बॉक्स 1, टेक्स्ट टू स्पीच 1. Viewer, the required blocks are dragged from the respective drawers and dropped in the viewer screen में हम जो है ऐड करते हैं. जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि व्हेन बटन 1 जब हमारा क्लिक होगा तो हम क्या करेंगे, डू एक्शन में कॉल टेक्स्ट टू स्पीच को कॉल करेंगे, फिर वो स्पीक मैसेज करेगा, फिर वो टेक्स्ट बॉक्स में हमें शो होगा और टेक्स्ट राइट किया हो. वंस वी हैव प्लेस द कंपोनेंट्स इन द डिजाइनर व्यू वी विल यूज बिल्ट इन कंपोनेंट स्पेसिफिक ड्रॉर्स इन द ब्लॉक्स एडिटर टू परफॉर्म कोडिंग फॉर दोज कंपोनेंट्स. जैसे ही हम डिज़ाइनर व्यू में हमारे कंपोनेंट्स प्लेस कर देते हैं फिर हम क्या कर सकते हैं, हम यूज़ कर सकते हैं स्पेसिफिक ड्रॉर्स को इन द ब्लॉक्स एडिटर टू परफॉर्म कोडिंग फॉर दोज कंपोनेंट. यानी कि पहले हम डिज़ाइनर विंडो में वर्क करेंगे फिर उसके बाद हम ब्लॉक एडिटर में काम करेंगे. Backpack. The backpack is a copy and paste feature that works between project and screens. The backpack icon is located at the upper right corner of the workspace. ये देखो आप लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो अपर कॉर्नर में, ये क्या है, एक ऐसा कॉपी एंड पेस्ट फीचर है जो प्रोजेक्ट और स्क्रीन के बीच में काम करता है. Accessing app inventor. Let us learn to access app inventor by following the instructions given. अब हम कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये लिंक है हम इस पर क्लिक करेंगे, फिर हम हमारे गूगल अकाउंट्स में लॉगिन करेंगे और द माई प्रोजेक्ट विंडो ऑफ ऐप इन्वेंटर ओपन हो जाएगी आपकी. और ऑफलाइन के लिए क्या होगा, टू ओपन ऐप इन्वेंटर ऑफलाइन फॉलो दिस स्टेप्स. क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, फिर क्लिक ऑन द AI2 ऑफलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, द माई प्रोजेक्ट विंडो ऑफ ऐप इन्वेंटर ओपन हो जाएगी. अभी ये आपकी टेस्ट करने के लिए आपकी नॉलेज को, व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स अवेलेबल इन ऐप इन्वेंटर्स डिज़ाइन एडिटर, ये अब आपको पता ही है. टू टाइप्स के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं डिज़ाइन एडिटर में, थिंक कीजिए. व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ ब्लॉक्स अवेलेबल इन द ब्लॉक्स एडिटर, टू टाइप्स के ब्लॉक्स कौन से हैं, व्हाट इज द कैटेगरी अंडर विच बटन्स फॉल. बटन कौन सी कैटेगरी में आते हैं, मीडिया या यूज़र इंटरफेस में. सो हेयर इज़ योर आंसर. फर्स्ट है आपके जो टू टाइप्स के कंपोनेंट्स हैं वो विजिबल एंड नॉन विजिबल. सेकंड है आपका जो हमने ब्लॉक्स एडिटर में आपको करवाया गया था बिल्ट इन ड्रॉर्स जो ऑलरेडी उसके अंदर होते हैं ऐप के, और कंपोनेंट स्पेसिफिक ड्रॉर्स जो हम अकॉर्डिंग टू उनके ऐप के बिहेवियर यूज़ करते हैं. और जो बटन्स है वो यूज़र इंटरफेस किस लिए, क्योंकि हम बटन क्लिक करेंगे तभी हमारा टास्क परफॉर्म होगा. सो हेयर इज सम जस्ट एक्टिविटीज एंड स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स दिस. फर्स्ट आपका चूज द करेक्ट प्रोजेक्ट नेम फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन. जब आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो तो उसका कैसे नेम दोगे. फर्स्ट प्रोजेक्ट, सेकंड ऑप्शन आपका फर्स्ट अंडरस्कोर प्रोजेक्ट, फर्स्ट अंडरस्कोर प्रोजेक्ट एंड फर्स्ट हाइफन प्रोजेक्ट. सो थिंक अबाउट इट एंड योर आंसर इज सी, फर्स्ट अंडरस्कोर प्रोजेक्ट.
The next is what happens when you click on the My Project option under the Projects tab. Tick the correct option. जब आप My Project ऑप्शन पे क्लिक करते हैं जो प्रोजेक्ट टैब में होता है तो क्या होगा, इट ओपन्स क्रिएट न्यू ऐप इन्वेंटर प्रोजेक्ट डायलॉग बॉक्स और इट ओपन्स द लिस्ट ऑफ द ऑल प्रोजेक्ट्स दैट यू हैव क्रिएटेड and your answer is it opens the list of all the projects you have created. The next question is tick the device size which is not available under the view drop down menu. Tablet size, monitor size, television size and phone size, and your answer is television size. And our next topic is mutator blocks and speech recognizer. Then what is mutator blocks? Any block with a blue box and a white gear on the top like the following image is known as mutator block. कोई भी ब्लॉक जिसके पास ब्लू बॉक्स हो और एक वाइट गेयर हो जो उसके टॉप में आपको दिख रहा है, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हो, इज कॉल्ड म्यूटेटर ब्लॉक. वी नीड म्यूटेटर्स टू ऐड मोर वैल्यूज एंड एक्सपेंड द ब्लॉक्स. हमें इसकी नीड कब पड़ती है, जब हमें मोर वैल्यूज, ज़्यादा वैल्यूज ऐड करनी हो और एक्सपेंड करना हो हमारे ब्लॉक को. नेक्स्ट इज योर स्पीच रिकॉग्नाइजर. स्पीच रिकॉग्नाइजर कम्स अंडर मीडिया. It is used to convert the uttered word or sentence into text. It is a non-visible component. तो आपने इसके अंदर क्या 3 बातें सीखी. एक तो ये मीडिया के अंदर आता है. सेकंड, हम इसको जो भी वर्ड देते हैं बोल कर या सेंटेंस देते हैं तो ये क्या करता है, हमें टेक्स्ट में राइट करके दिखाता है, शो करता है, और यह एक नॉन विजिबल कंपोनेंट है जो हमें दिखाई नहीं देता. So students, here is one more activity. So please answer this. Speech recognizer comes under dash. कौन सी कैटेगरी में आता है स्पीच रिकॉग्नाइजर, अभी जस्ट हमने पढ़ा है ना. टू ऐड मोर वैल्यूज एंड टू एक्सपेंड द ब्लॉक्स वी नीड, अभी ये भी पढ़ा है. एंड स्पीच रिकॉग्नाइजर इज अ डैश कंपोनेंट. सो हेयर इज योर आंसर. स्पीच रिकॉग्नाइजर कम्स अंडर मीडिया. To add more values and to expand the blocks we need mutators. Speech recognizer is a non-visible component. Okay, so अभी आपकी क्लास यहीं पर फिनिश होती है. Hope so all of the concepts you have understood, and in next class you will be creating your own apps in your own way. And thank you for attending the today class. Have a good and great day.